Good morning, students. Today we start with theorem 4. The orders of elements A and x inverse AX are the same where A and X are the two elements of a group. यहाँ हमने क्या दिखाना है, A और x इनवर्स AX जो है उन दोनों का ऑर्डर्स क्या होगा, सेम होगा, जहाँ A और X जो है वो दोनों ही ग्रुप G के एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट केस व्हेन A एंड x इनवर्स AX आर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर. फर्स्ट केस में हमने कंसिडर कर लिया कि दोनों का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, और हमें क्या दिखाना है, वो फाइनाइट वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए. तो और हम लेके क्या चल रहे हैं, लेट ऑर्डर ऑफ n एंड लेट ऑर्डर ऑफ x इनवर्स AX इज इक्वल टू m. वी हैव टू प्रूव हियर n इज इक्वल टू m. Now consider x inverse AX whole square. Now this can be written as x inverse AX into x inverse AX. Now this is equal to x inverse A x inverse AX using the associative result use करते हुए हमने x और x inverse को combine कर लिया. X and x inverse, this becomes the identity. Then it becomes x inverse A x, means this is equal to x inverse A square x. Proceeding like this, we get x inverse AX raised to power n is equal to x inverse A raised to power n into x, because x inverse AX square में यहाँ x inverse A square x आया, जब क्यूब लोगे तो यहाँ A का क्यूब हो जाएगा एंड सो ऑन. जब हम पावर n रेज करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, x inverse A raised to power n into x. Now this is equal to x inverse EX because order of A is equal to n. If order of A is equal to n, then A raised to power n is equal to identity. Now this is equal to x inverse x, and x inverse x is again equal to identity. Now we get x inverse AX raised to power n is equal to E. So order of x inverse AX is less than equal to n. Now this implies but order of x inverse AX we have already considered this is equal to m. So we get m is less than equal to n. Now we have to prove m is greater than equal to n. To prove m हमें अब यहाँ m ग्रेटर देन इक्वल टू n प्रूव करना पड़ेगा ताकि m और n क्या हो जाए, आपके इक्वल हो जाए. सिंस ऑर्डर ऑफ x इनवर्स AX इज इक्वल टू m जो हम लेके चले हुए हैं, so by the definition if order is equal to m, so x inverse AX raised to power m becomes the identity. This implies using the above result which we have proved earlier, x inverse AX whole power m becomes x inverse A raised to power m into x. This is equal to E. This implies x inverse A raised to power m into x is equal to E. Identity element can be written as x inverse x. Now cancelling, आपने लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यूज करना है, तो x इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, A raised to power m into x is equal to x. And this x again can be written as E into x. तो यहाँ से आपने राइट कैंसिलेशन लॉ अगर हम यूज करते हैं तो x आपका कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा A raised to power m is equal to E. ये हम E आइडेंटिटी एलिमेंट को यहाँ हमने x इनवर्स x लिखा, यहाँ फिर हमने x को EX लिखा. क्यों? क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, दोनों तरफ से x इनवर्स और x को हम रिमूव करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा है. So we get A raised to power m is equal to E. So by definition we can say order of A is less than equal to m. But we have already supposed that order of A is equal to n. So we get n is less than equal to m. Now from these, combining these two results, m is less than equal to n and n is less than equal to m, we get n is equal to m. So order of A and order of x inverse AX are the same. Now second case, when order of A is infinite. So now we have to prove x inverse AX is also of infinite order. Now we prove the result by contradiction. Suppose order of x inverse AX is finite, say m. If order of x inverse AX is m, so we can write it as x inverse AX raised to power m is equal to E. And by using the above result which we have proved earlier, x inverse AX raised to power m can be written as x inverse A raised to power m into x is equal to E. From this result we have to reach the result order of A. हमें यहाँ इस रिजल्ट से ऑर्डर ऑफ ए पे पहुंचना है, तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ से एक्स इनवर्स और यहाँ से एक्स हमारा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए. और ऐसा करने के लिए हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से और पोस्ट मल्टीप्लाइंग करेंगे एक्स इनवर्स से. सो वी गेट एक्स इनवर्स A raised to power m x inverse is equal to x e x inverse. So from here we get E A raised to power m E is equal to x inverse. Then we get A raised to power m is equal to identity. This implies order of A is finite. Means from here we can say order of A is less than equal to m, means order of A is finite, which is a contradiction because we have supposed order of A is infinite. So our supposition is wrong. यहाँ हम क्या लेके चले थे कि order of x inverse AX क्या है, finite है.
ये हम लेके चले थे और ये लेके चलने से हमारे पास रिजल्ट आ गया, ऑर्डर ऑफ ए भी हमारा क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। लेकिन ये तो क्या हो गया, आपकी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स कैन नॉट बी फाइनाइट, सो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इनफाइनाइट। सो ऑर्डर ऑफ ए एंड एक्स इनवर्स ए एक्स बोथ आर सेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, if G is a group with respect to multiplication and A and B are any two elements of G, then order of AB and BA are same। आपको क्या दिखाना है, AB और BA का order जो है वो क्या होगा, same होगा। As A and B are two elements of G, so A into B belongs to G by the closure property. Also, AB into and X inverse AB X are of same order for some X belongs to G। अब यहाँ ए बी जी का एलिमेंट, जैसे ऊपर थ्योरम में था ए जी का एलिमेंट और एक्स अगर जी का एलिमेंट है तो ए और एक्स इनवर्स ए एक्स दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। अब रिजल्ट को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ऊपर वाले रिजल्ट को, तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी और एक्स इनवर्स ए बी इंटू एक्स दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। सो ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए बी एक्स। यहाँ जो हमने x कंसिडर किया, दिस इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ G, सो हियर वी कंसिडर x इज इक्वल टू a इन पर्टिकुलर केस। अगर हम x को a कंसिडर कर लें यहाँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स ए बी a, एंड a इनवर्स a becomes identity, so we get order of ab is equal to order of ba, hence the result means जो एग्जाम्पल 7 है इसमें हमने थ्योरम 4 का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट G बी अ ग्रुप ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। G में जो हमने ग्रुप कंसिडर किया है वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का है, मीन्स 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर जो है वो उसके एलिमेंट्स हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप G अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। अब हमें इस ग्रुप G के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। यहाँ अब आपको ऑर्डर की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अगर हम कहें ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n, इट मीन्स n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर for which a raised to power n is equal to identity. Now in the given group identity element is 1। आपको पता है 1 identity element है, so order of 1 is equal to 1 because e identity element is the only element whose order is 1. Now we have to find the order of other elements omega and omega square. Now order find out करने के लिए अब हमें पावर हम रेस करके देखते रहेंगे हर एलिमेंट के लिए। ओमेगा पे अगर हम पावर 1 रेज करते हैं तो ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर ही आ गया, ओमेगा क्यूब करोगे आप तो आपको पता है ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 आता है। तो 3 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, सो ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज 3। नाउ वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, देन वी कंसिडर ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 1, omega square raised to power 2 means omega raised to power 4, and omega raised to power 4 can be written as omega cube into omega, and omega cube is 1, so we get omega. Omega square cube becomes omega raised to power 6, and omega raised to power 6 can be written as omega cube square. Omega cube is equal to 1, so 1 square is again we get 1, so order of omega square is also 3। तो यहाँ हमने हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया। 1 का ऑर्डर 1 है, ओमेगा का ऑर्डर 3 है और ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी कितना है आपका, 3 है। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। यू कैन चेक द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट। हियर 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, सो ऑर्डर ऑफ 1 इज 1। ऑर्डर ऑफ -1 आप चेक करो, उसके लिए आप क्या करोगे, -1 रेज़ टू पावर 1 करोगे तो क्या आएगा आपके पास -1 रेज़ टू पावर 2 करोगे तो क्या आएगा 1, सो ऑर्डर ऑफ -1 इज 2। सिमिलरली इफ यू फाइंड द ऑर्डर ऑफ आयोटा, देन आयोटा रेज़ टू पावर 1 इज 1, आयोटा रेज़ टू पावर 2 इज -1, आयोटा रेज़ टू पावर 3 अगर आप करोगे तो वैल्यू आएगी माइनस आयोटा, एंड आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, सो ऑर्डर ऑफ आयोटा इज 4। To find the order of minus iota, we take minus iota raised to power 1 is minus iota raised to power 2 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी -1, माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 3 करोगे तो वैल्यू आयोटा, और माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 4 करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1, सो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज 4। तो यहाँ 1 एलिमेंट जो है उसका ऑर्डर 1 है, -1 का ऑर्डर 2 है, आयोटा और माइनस आयोटा का ऑर्डर क्या है 4। अब स्टूडेंट्स आप लोग इसमें 10th एग्जाम्पल आप ये रीड कर लेना, आप कर सकते हो, उसमें भी आप लोगों को ऑर्डर ही फाइंड आउट करनी है जो आपको ग्रुप दे रखा है उसके, बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इसमें आपका एक एग्जांपल और रहता है 11th एग्जांपल, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। और आप इसमें एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो आप क्वेश्चंस ट्राई करोगे सारे, और जो भी प्रॉब्लम आती है
फिर वो हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।